مارننگ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب کے 3 ماہ کے بجٹ کی ابتدائی تجاویز تیار 42 سیکٹرز کے تحت 280 ارب مختص کرنے کی تجویز سڑکوں کے لیے 48 ارب 55 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے محکمہ اسکول ایجوکیشن کو 23 ارب 50 کروڑ روپے دیے جائیں گے پبلک بلڈنگز کے لیے 12 ارب 13 کروڑ روپے تجویز کیے گئے ہیں ذرائع کے مطابق سڑکوں کے لیے 48 ارب 55 کروڑ 91 لاکھ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے لیے 35 ارب 29 کروڑ 91 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز پنجاب اسمبلی میں پیش کی جائے گی اربن ڈیولپمنٹ کے لیے 17 ارب 70 کروڑ 71 لاکھ پبلک بلڈنگز کے لیے 12 ارب 13 کروڑ ایگریکلچر کے لیے 5 ارب 34 کروڑ لوکل گورنمنٹ کے لیے 18 ارب 24 کروڑ مختص کرنے کی تجویز دی جائے گی پی این ڈی کے لیے 21 ارب 23 کروڑ روپے اسکول ایجوکیشن کے لیے 23 ارب 50 کروڑ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے لیے 14 ارب 41 کروڑ اریگیشن کے لیے 8 ارب 10 کروڑ گورننس اینڈ آئی ٹی کے لیے 12 ارب 99 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی جائے گی واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن کے لیے 7 ارب ہائر ایجوکیشن کے لیے 3 ارب انڈسٹریز کے لیے 6 ارب 47 کروڑ رکھے جائیں گے ذرائع کے مطابق انرجی کے لیے 1 ارب 80 کروڑ ٹرانسپورٹ کے لیے 1 ارب 90 کروڑ انوائرمنٹ کے لیے 2 ارب 79 کروڑ وائلڈ لائف کے لیے 2 ارب 76 کروڑ فارسٹری کے لیے 1 ارب 70 کروڑ اوقاف کے لیے 1 ارب 10 کروڑ روپے رکھے جائیں گے آئندہ 3 ماہ کے لیے سپورٹس کے لیے 1 ارب 19 کروڑ روپے لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کے لیے 2 ارب 5 کروڑ پاپولیشن ویلفیئر کے لیے 1 ارب 30 کروڑ رکھنے کی تجویز دی جائے گی لاہور کے لیے بلیو اور پرپل لائن کا فیوچر پلان ایل ڈی اے اور میس ٹرانزٹ اتھارٹی میں اختلاف بڑھ گئے ایل ڈی اے میس ٹرانزٹ ٹرین کی بجائے بی آر ٹی سسٹم لانے کا خواہاں بلیو اور پرپل لائن پر ایک لائن کی لاگت 20 کھرب سے زائد اتھارٹی ایک بار پھر کروڑوں سے سٹڈی کروانے کی خواہش مند کے مطابق ایل ڈی اے بلیو اور پرپل لائن کے لیے میس ٹرانزٹ ٹرین کی بجائے بی آر ٹی سسٹم لانے کی خواہاں ہے ایل ڈی اے نے کھربوں مالیت کے دونوں منصوبوں کی لاگت میں کمی لانے کے لیے بی آر ٹی سسٹم تجویز کیا بلیو اور پرپل لائن پر کم سے کم ایک لائن کی لاگت 20 کھرب سے زائد ہے ذرائع کے مطابق میس ٹرانزٹ اتھارٹی دونوں لائنز کو شروع کرنے میں دلچسپی کی بجائے ایک مرتبہ پھر کروڑوں کی لاگت سے سٹڈی کرانے کی خواہش مند ہے اورنج لائن کا سول سٹرکچر 55 ارب میں بنایا گیا تھا ایل ڈی اے بلیو اور پرپل لائن کے سول سٹرکچر کا تخمینہ دگنا تجویز کر رہی ہے ایل ڈی اے ذرائع کے مطابق 2 کھرب لگا کر دونوں لائنز کا سول سٹرکچر مکمل کیا جاتا ہے 20 کھرب لگانا پیسے کا ضیاع ہے چیف انجینئر ایل ڈی اے کا کہنا ہے کہ ہمسایہ ممالک میں اس لاگت میں 10 بی آر ٹی سسٹم بنائے جا رہے ہیں سرکاری اسپتالوں سے ادویات چوری پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا ایک اور سکینڈل آ گیا پی آئی سی سے کنٹراسٹ انجیکشن کی چوری کا انکشاف ہوا ملازم علی سے کنٹراسٹ انجیکشن برآمد ہوا ٹیکہ 5 سے 7 ہزار میں پرائیویٹ ہسپتالوں کو بیچا جاتا رہا ڈرگ ٹیم نے مقدمہ درج کروا دیا تحقیقات شروع انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے انجیوگرافی اور سٹی انجیو میں استعمال ہونے والے کنٹراسٹ انجیکشن کے بڑے پیمانے پر چوری کا سکینڈل منظر عام پر آ گیا وزیر پرائمری ہیلتھ خواجہ عمران نذیر نے نوٹس لیا جس پر ڈرگ ٹیم نے پی آئی سی کے علی نامی ملازم کو پکڑ لیا ملزم سے انجیکشن بھی برآمد کر لیے گئے انجیکشن چوری کر کے 5 سے 7 ہزار روپے میں پرائیویٹ ہسپتالوں کو فروخت کیے جا رہے تھے ڈرگ ٹیم نے مقدمہ درج کروا کر مزید تحقیقات شروع کر دی ابتدائی تحقیق کے مطابق انجیکشن ایک منظم طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ کے نام پر سٹور سے غائب کیے جا رہے تھے شہر میں گراں فروشی عروج پر دودھ 160 کی بجائے 180 روپے فروخت دہی کے 180 کی بجائے 220 روپے وصول کیے جانے لگے ڈپارٹمنٹل سٹورز بھی ناجائز منافع خوری میں پیش ڈی سی کاؤنٹرز پر غیر معیاری سبزیاں فروخت ہونے لگیں شہر کی اوپن مارکیٹ میں بدستور گراں فروشی کا سلسلہ جاری ہے اس بہتی گنگا میں ڈپارٹمنٹل سٹورز بھی ہاتھ دھونے میں مصروف ہیں ڈپارٹمنٹل سٹوروں پر مٹن سرکاری قیمت 1600 کی بجائے 2400 روپے فی کلو گرام میں فروخت ہو رہا ہے بیف بھی بڑے گروسری سٹوروں پر سرکاری قیمت 800 کی بجائے 900 اور اس سے زائد قیمت پر بیچا جا رہا ہے اوپن مارکیٹ میں دودھ دہی کی مہنگے داموں فروخت کا سلسلہ بھی عروج پر ہے دودھ 160 کی بجائے 180 روپے لیٹر اور دہی 180 کی بجائے 220 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے جو ڈی سی کا ریٹ ہے وہ دہی 180 روپے 220 روپے کلو مل رہا ہے لیتے لو نہیں تو آگے جاؤ دودھ بیچنے والے ہیں کسی نے 800 گرام کی گڑوی بنائی ہے کسی نے 900 کی بنائی ہے
या आखिर क्या वजह है? डिपार्टमेंटल स्टोरों पर डीसी काउंटर पर गली सड़ी घटिया क्वालिटी की सब्जियां रखकर खाना पूरी की गई है। मुजस्सर भी इन स्टोरों का रुख करने से कतराते हैं और अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। रमजान मुबारक में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर। 3 दिनों में एलपीजी सिलेंडर 800 रुपये तक महंगा हुआ। ओगरा खामोश तमाशाई बन गई। जिला इंतजामिया ने भी गिरां फरोशों के सामने हथियार डाल दी। माह रमजान में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर देखी जा रही है। 3 दिन में ही एलपीजी के सिलेंडर का रेट 800 रुपए बढ़ गया है। एलपीजी की सरकारी कीमत 256 रुपए फी किलो है, लेकिन एलपीजी मार्केटिंग कंपनियां सरकारी कीमत के बरक्स 287 रुपए 64 पैसे फी किलो में सप्लाई दे रहे हैं और ओपन मार्केट में एलपीजी की रिटेल प्राइस 300 से 320 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। जिला इंतजामिया और ओगरा ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस कंपनियों को नकेल डालने में नाकाम है, जबकि जिला इंतजामिया सिर्फ छोटे रिटेलर्स को भारी जुर्मानी करके खाना पूरी कर रही है। पंजाब हुकूमत के निगहबान रमजान पैकेज की तकसीम के तरीकाकार के खिलाफ खवातीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। रमजान पैकेज वसूल करते वक्त फोटोशूट और सरकारी वसाइल के बेदरे इस्तेमाल पर खवातीन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ताजपुरा के इलाके अतर अब्बास पार्क में खातीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। खातीन की कसीर तादाद मुजाहरे में शरीक हुई और पंजाब हुकूमत के निगहबान रमजान पैकेज की तकसीम के तरीक़ेकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। खातीन का कहना था कि रमजान पैकेज की तकसीम पर सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस और सरकारी अफसरान की टोलियां रमजान राशन देने आ रही हैं। अफसरान माओ बहनों और बेटियों को राशन वसूल करवा कर फोटो शूट करवा रहे हैं। एक आटे का थैला दे देते हैं, साथ तस्वीर उतरवा लेते हैं। तो ये कहाँ की शरावत है कि हम जैसे जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो तो घरों में बैठे हैं। जी कह दिया कि आपके घरों में आपको राशन मिलेगा। कहाँ मिल रहा है? हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर आपने देना है तो ठीक है, अच्छे तरीके से दें, नहीं देना तो इस तरह खवातीन की तजलील तो ना करें ना। किसी का कोई नाअहल आ रहा है, किसी का जी वो रजिस्ट्रेशन ही हुई है, तो जिनकी हुई है तो उनका भी नहीं वो कह रहे, कोई बात नहीं, कोई सुन रहे। बेहतर होता कि ये बाहर आम मार्केट्स में ये चीज़ों का रेट जो है वो कम करते ताकि हर बंदा जो है इससे वो फायदा उठा सकता। खातीन का कहना था कि माह मुबारक में रियासत बतौर माँ कम आमदन वाले घरानों की सफेद पोशी का भरम रखने के लिए रमजान राशन दे रही है, न कि खातीन की तजलील करने के लिए। ताजपुरा की रिहायशी खातीन ने ताहाल रमजान राशन मौसूल न होने का शिकवा भी किया। अब दुकानों पे राशन सस्ता करें, महंगाई कम करें और लोगों को जलील ना करें। अगर आपको आप लोगों ने लाए हैं ना नुमाइंदा बना के, तो उनका ख्याल रखें। ये कोई बात नहीं है कि आपने अवाम में से निकाल के, हम में से निकाल के और हम ही को वो जो है ना लाइनों में लगाया हुआ है आप लोगों ने। सब अपना पेट भर रहे हैं, देना चाहिए जिसका हक है। जो बेवा जो गरीब हैं सबको देना चाहिए, कोई भी नहीं दे रहे। खातीन ने मुतालबा किया कि निगहबान रमजान पैकेज सफेद पोश तबके की इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर बाइज्जत तरीके से घरों की दहलीज तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। मैट्रिक सालाना इम्तहानात के निगरां अमले में सिफारशी असातिज़ा लगाने का इंकशाफ हुआ है। बेशतर इम्तहानी सेंटर्स में प्राइवेट और बेशतर में जूनियर असातिज़ा को डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट के ओहदों पर तैनात कर दिया गया। सालाना इम्तहानात में निगरान अमले में सिफारशी असातिज़ा लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। एक ही इदारे की 2 खातीन असातिज़ा को एक ही सेंटर में बतौर सुप्रिंटेंडेंट और डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट तैनात किया गया है। कानून के मुताबिक डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ग्रेड 15 की होनी चाहिए। बोर्ड कानून के तहत एक स्कूल के 2 असातिज़ा को एक साथ ड्यूटी नहीं दी जा सकती। कंट्रोलर इम्तहानात मोहम्मद इरफान के मुताबिक असातिज़ा की ड्यूटियाँ कंप्यूटराइज तरीके से लगाई जाती हैं। मोहम्मद इरफान का कहना है कि बोर्ड कानून के मुताबिक ग्रेड 15 के असातिज़ा को भी सुप्रिंटेंडेंट लगाया जा सकता है। तालीमी बोर्ड और एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के माबैन पब्लिक स्कूलों में बनाए गए इम्तहानी सेंटर्स में बिजली फराहम करने के मामलात तय ना हो सके। उम्मीदवार कम रोशनी में पेपर्स हल करने पर मजबूर हैं। मैट्रिक साइंस के सिर्फ 2 पेपर्स बाकी रह गए। 19 मार्च से नहम जमात के सालाना इम्तहानात का आगाज होगा। मराकज़ खुले और रोशन ना होने के बायस उम्मीदवारों को पेपर हल करने में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। वालिदैन का कहना है कि मैट्रिक सालाना इम्तिहान के सिर्फ 2 पेपर्स बाकी रह गए हैं। लाहौर बोर्ड इम्तिहानी सेंटर्स में इंतजामात की फराहमी में मुकम्मल नाकाम हो चुका है।
मैट्रिक के पेपर 18 मार्च से खत्म हो रहे हैं। 19 मार्च से 9वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज होना है। लाहौर में 300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में इम्तिहानी सेंटर्स बनाए गए हैं। मज़कूरा स्कूलों में इंतजामिया की जानिब से बिजली फराहम करने से इनकार कर दिया गया है। स्कूल सरबराहान का कहना है कि बिजली का टैरिफ कमर्शियल होने के बायस इलेक्ट्रिसिटी फराहम नहीं कर सकते। लाहौर बोर्ड बिजली की मद में 5 साल से फंड्स फराहम नहीं कर रहा। दूसरी जानिब बोर्ड हुकाम का कहना है कि फंड्स की फराहमी के लिए सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। स्कूल सरबराहान तहरीरी तौर पर आगाह करें तो हम फंड्स फराहम कर देंगे। मियानी साहब कब्रिस्तान में सफाई की नाकिस सूरत हाल, अली टाउन मनावा का सीवरेज निज़ाम जवाब दे गया। मुस्लिम टाउन मोड़ चिन्योट गली में बेहंगम तारों के गुच्छों के सबब शहरी परेशान हैं। मियानी साहब कब्रिस्तान में सफाई सुथराई के इंतजामात यकीनी न बनाए जा सके। प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी करने आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं आला हुकाम नोटिस लेकर कब्रिस्तान में सफाई सुथराई के इंतजामात यकीनी बनाए, हिफाजती दीवारें तामीर की जाए, तवज्जो दी जाए और इसकी सफाई वगैरह कराई जाए और जो ये जंगले वगैरह भाई बता रहे हैं ये सारे इनको ठीक किया जाए। और ये कब्रिस्तान है, लोग आते हैं फातिहा के लिए और इधर सफाई सुथराई का इंतजाम ठीक तरह होना चाहिए। अली टाउन मनावा का सीवरेज निजाम खराब हो गया। मुताद्दद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गंदा पानी जमा है। इलाका मकीन परेशान। साडा बंदे सवेरे नमाज पढ़न लंघने तो वो कई डिग पैंदे ने। ये लिहाजा मेहरबानी बननी चाहिए। इन बनाओ जिस तरह बनती बनाओ, साढ़े बहुत तंग आ सड़क तो बना। रामगढ़ चौक शालीमार लिंक रोड के मेन होल का ढक्कन गायब, सड़क पर शगाफ पड़ गया, ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर। शाहराह पर सीवरेज लाइन का ढक्कन न होने से ट्रैफिक हादसात का खदशा बढ़ गया है। शहरियों ने वासा इंतजामिया से सीवरेज लाइन का ढक्कन लगाने का मुतालबा किया है। मेन तेहाता रोड पत्थरों और खड्डों से भर गई। मुताद्दद बार मुरम्मत करने के बावजूद रोड की असल हालत में बहाल न हो सकी। इलाका मकीनों की आमदरफ्त का सिलसिला मुतासिर होने लगा। रोड पर मौजूद दुकानदारों के कारोबार भी तबाह हो चुके हैं। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक माल लादकर रोड पर आने से डरते हैं। अपनी मदद आपके तहत कई बार रोड की मुरम्मत करवाई। चिन्नौट गली मुस्लिम टाउन मोड़ में बेहंगम तारों के गुच्छे वबाले जान बन गए। बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर्स ने तारों को ओढ़ रखा है। बेहंगम लटकते तार घरों की दीवारों को छूकर गुजरते हैं। इलाका मकीनों का कहना है करंट लगने के मुताद्दद वाकयात में लोग जानी नुकसान उठा चुके हैं। बेहंगम तारों और बिजली का निजाम बड़ी तबाही का पेशे खेमा साबित हो सकता है। टाली वाला ग्राउंड पावर हाउस मुगलपुरा इंतजामिया की अदम तवज्जोही की बीच चढ़ गया। ग्राउंड में जंगली घास उगने लगी, गंदगी के भी अंबार लग गए। मुगलपुरा में बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड दस्तयाब न होने से इलाका मकीन परेशान है। टाली वाला ग्राउंड नज़्ब पावर हाउस इंतजामिया की गफलत की नजर हो गया। ग्राउंड जहां कभी बच्चों का रश होता था अब भैंसों की आमाजगाह बन चुका है। ग्राउंड में न घास की देखभाल की जा रही है, न गंदगी को हटाया जा रहा है। मुगलपुरा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से इलाके में साफ पानी की किल्लत होने लगी। शहरी पानी खरीद कर जरूरियात पूरी करने पर मजबूर हो गए। रिहायशियों के मुताबिक फिल्ट्रेशन प्लांट कई महीनों से बंद पड़ा है। कई महीनों से फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होकर गंदगी का ढेर बन गया। 6 माह हो गया पूरे, बहुत परेशान हुए। जो भी आता है ना बेचारा परेशान हुआ हो, यहाँ से बेचारा पीछे जाएगा आएगा। औरतें आती हैं, लेडीज आती हैं तो उनको मसला होता है। लोग इतने परेशान है कि अब आपको बता नहीं सकते। ये लोग आते ही नहीं, इन्होंने खाम लगाया हुआ ये। मेन कैनाल रोड नज़्ब जमान पार्क पे नज़्ब फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से गैर फाल हो गया। फिल्ट्रेशन प्लांट के गिरदो नवा में गंदगी के अंबार लग गए। जमान पार्क के इलाके में नज़्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ट्यूबवेल तवील अरसे से शहरियों को पानी फराहम करने में नाकाम हो गया। गैर फाल फिल्ट्रेशन प्लांट के आसपास पानी और कीचड़ जमा होने से गंदगी में इजाफा हो गया। लेस्को की जानिब से मीटर्स की खरीदारी आउटसोर्स करने का मामला संगीन होने लगा। करोड़ों रुपए के डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद कनेक्शंस इल्तवा का शिकार हो गए। शोभा मेराट ने रिकॉर्ड तलब कर लिया है। बताया कि सैकड़ों सारिफिन की जानिब से करोड़ों रुपए की अदायगी के बावजूद मीटर्स जारी नहीं हो सके की वजह से शोभा मेराट ने तमाम सर्कुलर से जेर इल्तवा केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सारिफिन की जानिब से जमा होने वाले डिमांड नोटिस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया गया। मेराट ने सारिफिन का नाम, हवाला नंबर और डिमांड नोटिस जमा करवाने की तारीख का रिकॉर्ड मांगा गया। कंपनी के शोभा मेराट ने 15 मार्च तक रिकॉर्ड जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वाजिया रहे कि लेस्को ने 2 रोज कबल बाई डायरेक्शनल मीटर्स का स्टॉक खत्म होने पर मार्केट से खरीदारी की इजाजत दी। ताहम इससे कबल सैकड़ों सारिफिन डिमांड नोटिस जमा करवा चुके थे। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान। ट्रैक्स, बोगियां और मालगाड़ियों के पुराने डब्बे कबाड़ बनकर रह गए। गाजियाबाद में मौजूद रेलवे ट्रैक जमीन में धंसने लगा। मालगाड़ियों के डब्बे कूड़ादान बन गए।
शहर में रेलवे राजी की हिफाजत न होने के बराबर रह गई। बेशतर पुराने इलाकों से गुजरने वाले ट्रैक्स इंतहाई खस्ता हाल हो चुके हैं। रेलवे ट्रैक्स पर मौजूद माल गाड़ियों के डिब्बे भी कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। गाजियाबाद में मौजूद ट्रैक जमीन में धंस गया। करोड़ों रुपए मालियत का लोहा जमीन की नजर होकर ज़ाया हो रहा है। माल गाड़ियों के डब्बों को कूड़े के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इलाका मकीन अपने घरों का कचरा माल गाड़ियों के डब्बों में फेंक रहे हैं। रेलवे के पुराने ट्रैक्स को इलाका मकीनों ने जानवरों की माजगा बना लिया है। रमज़ान अल मुबारक में सहर और अफ्तार में मायारी खानों की फ्राहमी। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। 19 पॉइंट्स को 2.5 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद कर दिए। फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से गवाल मंडी, निस्बत रोड और शादमान में 32 फूड सहर अफ्तार पॉइंट्स की चेकिंग की गई। खिलाफ वर्जियों पर 3 फूड पॉइंट्स बंद कर दिए गए। 16 पॉइंट्स को 2,69,000 के जुर्माने, जबकि 13 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए हैं। 1 मन से जायद खराब फंगस ज़दा सब्जियां और जायदुल मयाद अज्जा को भी तलफ कर दिया गया। शहरी की तैयारी में नाकिस गंदी सब्जियों के इस्तेमाल और सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात पर 3 फूड पॉइंट्स को बंद किया गया। बदबूदार वाशिंग एरिया, टूटे फ्रीजर का इस्तेमाल और किचन में कीड़े मकोड़ों की भरमार पर 16 पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का तनख्वाहें और सिक्योरिटी ना मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा। मुतालिबात ना मानने की सूरत में अस्पतालों को बंद करने की धमकी दे दी। एसोसिएशन ने तनख्वाहों और सिक्योरिटी ना मिलने पर पंजाब हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। वाईडीए नुमाइंदगान ने PHFMC के सामने शदीद नारेबाजी की। सदर वाईडीए पंजाब डॉक्टर शेब नियाजी ने कहा, डॉक्टर को तनख्वाहें नहीं दी जा रही, ना ही सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। जब तक के डॉक्टर्स की पेज नहीं दी जाती, उनके साथ उनके मसाइल के हल के लिए डायलॉग नहीं की जाते, इन PHFMC हम सेंटर्स को चलने नहीं देंगे। सदर वाईडीए म्यू अस्पताल राशिद विर्क का कहना है, गिला किया जाता है कि डॉक्टर ड्यूटी नहीं देते, लेकिन हकीकत ये है हमारे अस्पताल में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसी सारे मामलात के ऊपर हमारा ये एहतजाज हम रिकॉर्ड कराने आए हैं। अगर हमारी ये मुतालबात ना मानेंगे तो ये एहतजाज आज तो एक एहतजाज इस दफ्तर के सामने हो रहा है, हर BHU, RSC, THQ, DHQ इन सब के सामने इंशाल्लाह हड़ताल होगी। वाईडीए नुमाइंदगान कहते हैं, अगर 48 घंटों तक मुतालबा ना माने गए तो PHFMC के तहत चलने वाले अस्पतालों को ताले लगा देंगे। कैमरामैन मिराज के साथ अजमत अवान, CD42। दिन भर की अहम अदालती खबरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। अस्करी टावर और थाना शादमान जलाने के केसेस। डॉक्टर यास्मीन राशिद की 3 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फ्रीकैंट को वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ पंजाब असेंबली से जबरी रुखसत पर होते हुए सेशन अलाउंस वसूली के मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को गुजरांवाला जेल से एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया। मुलजिम मोहम्मद खान भट्टी की ट्रायल के लिए हाजिरी मुकम्मल की गई। अदालत ने मजीद समाअत 22 मार्च तक मुलतवी कर दी। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सफदर अली भट्टी ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की नामालूम मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शेहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत से माजरत कर ली। रायवंड सिटी पुलिस मुगवी को बाजियाब करवाने में नाकाम। हाई कोर्ट में मुगवी की बाजियाबी का मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। मुगवी बाजियाब न हुआ। तलबे के बावजूद DIG इन्वेस्टिगेशन जिशान असगर पेश न हुए। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने और DIG इमरान किश्वर के मुतमिन करने की बिना पर केस निपटा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है, इलेक्शन में धांधली की चार्ज शीट पेश कर दी गई। अब बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात में पाबंदी किसी नई साजिश का पेश खैमा है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही ने गुजरात से जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी पर भी दस्तखत किए। अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव केस का ट्रायल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने करार दिया कि आइंदा समाअत पर मुल्जिमान में चालान की कॉपियां तकसीम की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हेल्थ कार्ड की रिलॉन्चिंग के लिए प्लान तलब कर लिया। स्कूलों में तुलबा को डब्बा बंद दूध देने का हुक्म दिया। मरियम नवाज का पंजाब टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम बोर्ड के अमूर पर इजहार तशवीश। तुलबा को किताबों की फ्राहमी में ताखीर पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला ने बड़ी राबिता सड़कों की तामीर व मुरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी।
हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हेल्थ कार्ड की रीलॉन्चिंग के लिए प्लान तलब कर लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वजीर आला को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया गया है। मरियम नवाज शरीफ ने हेल्थ कार्ड की रीलॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब किया। उन्होंने कहा, किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। हेल्थ कार्ड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट है, पायदार मैकेनिज्म के साथ रीलॉन्चिंग करेंगे। इजलास में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, मुशीर परवेज रशीद, वज़रा सेहत सलमा रफीक, इमरान नज़ीर, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर मौजूद थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन से मुतल्लिक इजलास हुआ। वजीर आला पंजाब ने सरकारी स्कूल में मॉर्निंग असेंबली बहाल करने की हिदायत की। तुलबा की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए डब्बा बंद दूध देने का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने निजी इश्तराक से तुलबा के लिए दूध की फ्राहमी का प्रोजेक्ट सूबे भर में शुरू करने की हिदायत कर दी। वजीर आला ने पंजाब टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम बोर्ड के अमूर पर इजहार तशवीश किया। तुलबा को किताबों की फ्राहमी में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया। स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। इजलास में सरकारी स्कूलों में आफ्टरनून क्लासें और इवनिंग कोचिंग सेंटर शुरू करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। स्कूल ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम, इलेक्ट्रिक बाइक, बैग फ्री स्कूल और दीगर अमूर का भी जायजा लिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद, चीफ सेक्रेटरी समेत मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। शाहराहों की तामीर के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला पंजाब ने बड़ी राबता सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सूबाई वजीर सुहेब और सेक्रेटरी CNW ने सड़कों का आज खुद दौरा किया। पंजाब भर में 811 रोड्स की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। पंजाब में पहली मरतबा बैक वक्त 16,558 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी। वजीर आला पंजाब ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 5 एक्सप्रेस वेज की तामीर का मंसूबा जल्द शुरू करने की हिदायत की। पंजाब में मखदूश हालत 10 पुलों की तामीर शुरू कर दी गई। इजलास में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद, सुहेब अहमद शरीक हुए। अरकान सूबाई असेंबली सानिया आशिक, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी तामीरात मवासलात और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमा रफ़ी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। जारी तरक्याती स्कीमों और रिवैम्पिंग के मनसूबे का तफसीली जायज़ा लिया। इजलास में सैयद वाजिद अली शाह, आगा नबील, अब्दुल हक भट्टी, हमादुरिब और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मुतल्लिका अफसरान ने सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमा रफ़ीक को ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमा रफ़ीक ने शोबा सेहत के तमाम तरक्याती मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि अफसरान सरकारी हस्पतालों की रिवैम्पिंग के मनसूबे की खुद निगरानी करें। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक गंगाराम, DHQ साहिवाल, DHQ गुजरांवाला, कार्डियोलॉजी अस्पताल DG खान, इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन रावलपिंडी निश्तर 2 मुल्तान और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान में जारी तरक्याती मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करवाएंगे। सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर का आबशार पुलिस खिदमत मरकज़ शादमान का दौरा। SDPO गुलबर्ग, ASP सईदा शहरबानो ने पुलिस खिदमत मरकज़ में फ्राहम की जाने वाली सहूलियात बारे आगाह किया। सूबाई वज़ीर को जदीद सेमुलेटर सिस्टम, ट्रैफिक लाइसेंसिंग और खिदमत मराकज़ में शहरियों को फ्राहम की जाने वाली जदीद सहूलियात बारे आगाही दी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने आबशार पुलिस खिदमत मरकज़ शादमान को पब्लिक सर्विस डिलीवरी का शाहकार प्रोजेक्ट करार देते हुए कहा कि पुलिस खिदमत मराकज़ में खिदमात की फ्राहमी ने पुलिसिंग के रिवायती तशख़्ख़ुस और फरसुदा निज़ाम को मुकम्मल बदल दिया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पुलिस दफातर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जदीद बनाने पर IG पंजाब की काविशों को सराहा। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ख़वातीन अराकीन असेंबली के हमरा स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन गुलबर्ग का दौरा किया। अराकीन असेंबली हिना परवेज भट्ट, सादिया तैमूर, सुंबल मलिक, अमरीन इस्माइल, मलिक वहीद और गजाली सलीम भट्ट शामिल थे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने महकमा ट्रांसपोर्ट से शहरियों को दरपेश मसाइल सुने और इनको हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। न्यू मिनिस्टर ब्लॉक में सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने माहौलियाती आलूदगी से निमटने के हवाले से भी ब्रीफिंग ली। बिलाल अकबर खान का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी से निमटने के लिए E-बाइक्स और E-बसें ला रहे हैं। इंडस्ट्री है वो भी उसमें हिस्सा डालती है, लेकिन जो हमारा ट्रैफिक है, अब स्टडीज़ ये शो कर रही है कि ट्रैफिक का धुआं जो है वो सबसे ज़्यादा जो है माहौल को आलूदा करता है। तो अब उसमें कोशिश ये है कि आहिस्ता आहिस्ता एक आपको पता है आगाही मुहिम भी चल रही है। उसी मुहिम का एक हिस्सा है कि हम इंशाल्लाह अब मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा के इक़दामात के तहत ये है कि हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स को स्टूडेंट्स के अंदर तकसीम करेंगे आसान किस्तों के अंदर, जिसमें उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसकी रजिस्ट्रेशन बहुत स्लो है।
اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ فضول کام ہے, یہ جو موٹر سائیکل ہے یہ اس قابل نہیں ہے, یا اس کو میں چلانا ہماری شاید کوئی انسلٹ ہوتی ہے کیا. لاہور ٹرانسفر ہو کر آنے اور جانے والے ججز کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا گیا. لاہور ڈسٹرکٹ بار کے صدر منیر حسین بھٹی اور ان کی کابینہ نے اہتمام کیا. وکلاء اور سول ججز کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے بار کے صدر منیر حسین بھٹی نے نئے آنے والے ججوں کو خوش آمدید کہا. ان کا کہنا تھا بار اور بینچ گاڑی کے 2 پہیے ہیں, ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. ہم چاہتے تھے جو ٹینس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے وہ ختم ہو سکے. پچھلے 73 دن سے ایک سٹرائک چل رہی تھی اور ایک جوڈیشری اور بینچ اور بار کے درمیان ایک تناؤ کا ماحول تھا, تو ہم نے اس ماحول کو خوبصورت کرنے کے لیے تمام جوڈیشری کو دعوت دی کہ ہمیں بار اور بینچ کو مل کے ایک خوبصورت شام اکٹھے گزارنا چاہیے اور آپس میں ہمیں بالکل فیملی لائک ایک خوبصورت ماحول, جیسا کہ یہ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, انصاف کے لیے دونوں کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. تقریب میں سپریم کورٹ کے سابق صدر احسن بون ایڈوکیٹ نے خصوصی طور پر شرکت کی. احسن بون کا کہنا تھا لاہور بار کا یہ اچھا اقدام ہے, سب کو مل بیٹھ کر انصاف کی رائے ہموار کرنی چاہیے. انہوں نے سیشن جج لاہور کیسر نذیر بٹ کی خدمات کو سراہا. یہاں پہ اگر جج صاحبان بار کے ساتھ اچھا ڈیل کرتے ہیں, بار جج صاحبان کے اچھا ڈیل کرتی ہے, تو یہ ایک میسج ہوتا ہے کہ وی آر ٹوگیدر. اور اس میں اگر کوئی کسی قسم کا رخ نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. تقریب میں سیکرٹری راؤ تحسین شریف, نعیم طاہر کے علاوہ ممبر پنجاب بار کونسل بابر وحید, احسن بون, نصر اللہ ورائچ, ہائی کورٹ بار کے صدر اسد منظور شریک ہوئے. پیر مسعود چشتی, کامران مغل, ایڈیشنل سیشن شہباز احمد کھگا, شبریز اختر راجہ کے علاوہ ججوں کی بڑی تعداد موجود تھی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شہین عتیق, CT42. پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالج آف بینکنگ اینڈ فائنانس کے کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا. سابق مشیر وزیر اعظم خواجہ احمد حسان اور چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر سمیت دیگر نے شرکت کی. طلباء کو ڈگریاں بھی دی گئی. جامعہ یونیورسٹی ہیلے کالج آف بینکنگ اینڈ فائنانس کا 12واں کانوکیشن ہوا. 232 گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں. 2 سالہ اور 3.5 سالہ MBA کی ڈگریاں تقسیم کی گئیں. مہمان خصوصی سابق مشیر وزیر اعظم خواجہ احمد حسان کا کہنا تھا کہ طلباء اپنے شعبے میں آنے والوں کی کامیابی میں بھی کردار ادا کریں. آپ کو اللہ نے یہاں پہنچایا تو یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس سے آگے اس روشنی کو آپ نے کیسے پھیلانا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چراغ وہی بہتر ہوتا ہے, وہی اچھا ہوتا ہے جو دوسرے چراغ کے جلنے میں حصہ بنے اور اس کو جلائے, اور پھر یہ ایک لڑی جو ہے یہ چلتی جائے اور یہ اسی طرح چراغ سے چراغ جلتے جائیں. چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر کا کہنا تھا کہ طلباء اسلامک بینکنگ کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کریں. مستقبل کے سہانے خوابوں میں اس وطن کا مستقبل پوشیدہ ہے. ان کو خوش دیکھ کر ہم سب اساتذہ خوش ہیں, میں بھی خوش ہوں, اور مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا ہے کہ کبھی ہم بھی آپ کی طرح خوبصورت تھے. تقریب میں وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود, ڈین ڈاکٹر مبشر منور خان, پرنسپل ڈاکٹر احمد منیب, رجسٹرار ڈاکٹر احمد اسلام, اساتذہ, طلباء و طالبات نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین عمر سلیم کے ہمراہ عمران یونس, CT42. ماہ سیام کے آغاز کے ساتھ ہی خواتین عید کی تیاری شروع کر دیتی ہیں. عید کے لیے کپڑوں کی خریداری عروج پر پہنچ جاتی ہے. خواتین کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں, جانتے ہیں اس رپورٹ میں. رمضان المبارک شروع ہوتے ہی خواتین کی اولین ترجیح ہوتی ہے کہ رمضان کے پہلے عشرے میں ملبوسات کی خریداری مکمل کر لی جائے تاکہ عید تک ان کے ملبوسات سلائی ہو کر تیار ہو جائے. مارکیٹوں میں کپڑوں کے نت نئے ڈیزائن خواتین کی توجہ کا مرکز ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی خواتین کپڑے خریدنا شروع کر دیتی ہیں تاکہ عید تک تمام سوٹ سلائی ہو کر تیار ہو جائیں. جیسے ہی رمضان شروع ہونے لگتا ہے اس سے پہلے جو ہے نا کافی حد تک کسٹمرز آ جاتے ہیں, فیمیلز آ جاتی ہیں, کیونکہ کچھ رمضان میں نہیں نکلنا چاہتی اور ورائٹیز بھی 1-2 منتھ پہلے جو ہے نا آنا شروع ہو جاتی ہیں. گاہک کا کہنا ہے کہ آج بازار آئے ہیں تاکہ گھر والوں کے لیے ملبوسات خرید لیں, کیونکہ پھر درزی بھی کپڑے لینے سے انکار کر دیتے ہیں. آگے جیسے جیسے دن کم ہوتے رہتے ہیں, رش بڑھ جاتا ہے, بازاروں میں ریٹس بڑھ جاتے ہیں ہر جگہ, تو اس لیے ہم ٹائم سے آتے ہیں اور یہاں پہ اپنے گھر والوں کی خریداری کرتے ہیں, ہر طرح کی ورائٹی دیکھتے ہیں, جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ لیتے ہیں. رمضان کے پہلے عشرے میں ہی خواتین کی شاپنگ عروج پر پہنچ چکی ہے. خواتین کا کہنا ہے ابھی سے تیاری شروع کریں گے تو عید تک مکمل ہو پائے گی. کیمرہ مین محمد اسد کے ساتھ مائدہ وحید, CT42.
सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम क्राइम स्टॉपर सर्विस के मुतालिक आगाही सेमिनार हुआ। तलबा को क्राइम स्टॉपर नंबर पर जराइम की खुफिया इतला देने के तरीक़ाकार के बारे में आगाह किया गया। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम ब्लैक स्टोन स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस में क्राइम स्टॉपर सर्विस के मुतालिक आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। चीफ लॉ एंड प्रोक्योरमेंट जफर जावेद मलिक, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरीबा भट्ट ने स्टूडेंट्स को सर्विस के मुतालिक ब्रीफिंग दी। पंजाब पुलिस वुमेन्स सेफ्टी ऐप की वर्किंग के बारे में भी बताया गया। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की 14 तालिबात सोसाइटीज़ के नौमुंतखब सदूर की तकरीब में हल्फ बर्दारी तकरीब हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा जहरा काज़मी ने नौमुंतखब सदूर और एडवाइज़र से हलफ लिया। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में तालिबात की 14 सोसाइटीज़ के अहदेदारों ने हलफ उठाया। साल भर के दौरान मुख्तलिफ तदरीसी और गैर तदरीसी सरगर्मियों के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली 15 तालिबात को रोल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। तकरीब में डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स डॉक्टर इरम रुबाब, आयजा इमरान समेत तालिबात और असातिज़ा ने शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा जहरा काज़मी का कहना था कि यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज़ तालिबात की ज़हनी नशोनुमा में कलीदी मुआवन है। रोल ऑफ ऑनर्स हासिल करने वाली तालिबात में जन्नत शकील, आयशा आज़म, हानिया गिलानी, आयशा ताहिर, नतालिया असद, नूर अफसल, हाइका तारिक और दीगर भी मौजूद थी। न्यू इत्तेफाक क्रिकेट क्लब के ज़ेर-ए-एहतमाम रमज़ान क्रिकेट लीग का आगाज़ हो गया। पहले मैच में विक्टोरियस क्लब ने शाइनिंग क्लब को शिकस्त दे दी। न्यू इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड फैसल टाउन में खेली जा रही रमज़ान क्रिकेट लीग में मजमूई तौर पर 5 टीमें शिरकत कर रही हैं। लीग के पहले मैच में विक्टोरियस क्रिकेट क्लब ने शाइनिंग क्रिकेट क्लब को 100 रन के मार्जिन से शिकस्त दे दी। विक्टोरियस क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 220 रन बनाए। अब्दुल मोइद ने 110 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में शाइनिंग क्रिकेट क्लब की पूरी टीम 120 रन पर पवेलियन लौट गई। विक्टोरियस क्लब के खिलाड़ियों ने अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करते हुए मैच अपने नाम कर लिया। शेख एजाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट राना इरफान और डीआईजी जहांजेब नज़ीर की जोड़ी ने फतह समेट ली। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले जा रहे टूर्नामेंट के पहले मैच डीआईजी जहांजेब नज़ीर और राना इरफान की जोड़ी ने इमरान राठौर और मोहम्मद आबिद की जोड़ी को सख्त मुकाबले के बाद एक मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में डीजी वाइल्ड लाइफ मुदस्सर रियाज मलिक और डीजी टेफ्टा शुजात अली खान की जोड़ी ने अदाकार कैसर पिया और राना मकसूद की जोड़ी के खिलाफ एक के मुकाबले में 2 सेट से फतह समेटी। तीसरे मैच में गौहर नफीस और सखी सरवर की जोड़ी ने राजा अख्तर और गुलाम मुस्तफ़ा को यकतरफा मुकाबले के बाद स्ट्रीट सेट्स से शिकस्त दे दी। लाहौर म्यूजियम में एक रोज़ा पंजाबी कल्चरल फेस्टिवल का अहतमाम किया गया। डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम सादिया तहरीम ने इफ्तिताह किया। सकाफती मलबूसात, मट्टी से बने बर्तन, पेंटिंग्स और पंजाबी कुतुब स्टॉल्स भी लगाए गए। लाहौर म्यूजियम में एक रोज़ा पंजाबी कल्चरल फेस्टिवल मुनाकिद किया गया। फेस्टिवल में रंगारंग स्टॉल्स लगाए गए। मट्टी के बने बर्तन, मलबूसात, पेंटिंग्स और किताबों के स्टॉल्स शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। अपने कल्चर को, अपनी जो यंगस्टर जो है उन तक इसको रोशनास कराना है। आपको पता है कि जो हमारी नई नस्ल है वो अब सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, लेकिन हमने उसका भी एहतमाम किया। अब आप पीछे सुन रही होंगी कि हीर वारिसिया पढ़ी जा रही है और वो सोशल मीडिया पे लाइव जा रही है। इसी तरह हमने अपने बहुत सारे चीज़ों के जो हमारी कल्चरल जो हमारी शनाख्त हैं उनकी हमने स्टॉल लगाए हुए हैं यहाँ पे। क्यूरेटर एहतशाम का कहना था कि मॉडर्न दौर में नौजवान पंजाबी को जानते तो हैं लेकिन पंजाबी कल्चर के आगाज से आशना नहीं। शुरका का कहना था मॉडर्न दौर में हमें पंजाबी जुबान और पंजाबी कल्चर को फरामोश नहीं करना चाहिए। आज जो एग्जीबिशन आप देख रहे हैं पंजाब कल्चर डे के हवाले से, इसमें हमने कोशिश ये की है कि ऐसी चीज़ें, ऐसे नवादरात को डिस्प्ले किया जाए जो कि टिपिकल पंजाब की रवायात, पंजाब के कल्चर और तमद्दुन को प्रेजेंट कर रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पंजाब का मेटल वेयर बड़ा मशहूर रहा है। मुग़ल दौर में ख़ास तौर पे इसमें बड़ी जिद्दत हमें देखने को मिलती है। बहुत अहम दिन इसलिए भी है कि जो पंजाबी कौम है, जो पंजाबी नौजवान नस्ल है ख़ासकर, वो कल्चर से दूर होती जा रही थी। और 5 साल पहले जब ये प्रोग्राम शुरू करने का हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया तो उसका मकसद भी ये था कि लोग अपने कल्चर पर फ़ख्र करें, अपनी ज़ुबान पर फ़ख्र करें। तो तुसी सारी चीज़ां देख लो, लिबास तो लग के डेली यूटेंसिल्स हो गए, बाकी सारी चीज़ां ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ अपने इथों एथनोग्राफिकल गैलरी चो चीज़ां लैके पंजाबी कल्चर ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ अपना पंजाबी कल्चर प्रमोट करिए। डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम सादिया तहरीम ने स्टॉल्स का दौरा किया और कल्चरल फेस्टिवल को शानदार करार दिया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ कोमल असलम, सिटी 42 लाहौर।
कैरम बोर्ड का खेल नौजवानों में ही नहीं बुजुर्गों में भी यकसा मकबूल है। माह सियाम अफ्तारी से सहरी तक का वक्त गुजारने के लिए बुजुर्ग शहरी कैरम बोर्ड का सहारा लेते हैं। शहरियों का कहना है कि क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन कैरम बोर्ड एक अच्छी तफरीह है। मजीद जानते हैं अफशा रिजवान से। जी अफशा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टेंपल रोड पे, जहाँ पे हमारे बुजुर्ग शहरियों ने सहरी अफ्तारी से लेकर सहरी तक का वक्त गुजारने के लिए एक मज़ेदार सी बैठक बना ली है, जिसके अंदर वो कैरम खेल रहे हैं और अपना जो वक्त है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। बहुत गहमा गहमी है यहाँ पे और सहरी तक का वक्त गुजारने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, वो बहुत अच्छे तरीके से कैरम खेल के अपना वक्त गुजारते हैं। मज़ीद उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये बैठक जो है कब से जारी रहती है और खुसूसन रमज़ान के महीने में ये बैठक होती है या हर महीने में ही होती है। सब मुझे बताइएगा कि इस बैठक का क्या फ़ायदा है, कैसे इससे जो है इंजॉय करते हैं और ये सिर्फ रमज़ान के महीने में होती है क्या हर महीने? बेसिकली ये रोज़ की बुनियाद पे होती है, लेकिन रोज़ के लिए हमने एक मखसूस टाइम रखा होता है कि 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक खेलना है। और सारे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, कोई रिटायर्ड है, कोई बिजनेसमैन है, कोई और एक्टिविटी वाकई नहीं कर सकते, ना क्रिकेट खेल सकते हैं, ना बैडमिंटन खेल सकते हैं, ना कोई फुटबॉल खेल सकते हैं। यहाँ पे टाइम गुजरता है, गेट टुगेदर होती है, अच्छी कम्युनिटी है, अच्छे लोगों में बैठते हैं, बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। ये ओरिजिनली जो इन्वेंशन है ना कैरम, ये चाइना की है, ये चाइना से शिफ्ट होकर यहाँ पे आई है और ये सस्ती तरीन हमारे लिए तफरीह है, जिसको हम कहीं और नहीं कर सकते। 20-25 रुपए में हमारे 2-3 घंटे गुजरते हैं और गपशप लगाते हैं, चाय पीते हैं, अच्छा टाइम गुजरता है। उनका कहना है कि ये एक सस्ती तफरीह है जो कि हमें चंद पैसों में मिल जाती है, चंद घंटों के इवज़, और यहाँ पे आके उन्हें बहुत इंजॉयमेंट भी होती है, अदबी बैठक भी होती है, यहाँ पे वो अदबी बातें भी करते हैं, अपना बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे गुजारते हैं। और खुसूसन रमज़ान के महीने में उनका ज़्यादा टाइम यहाँ पे गुजरता है, जो कि उनके लिए एक बहुत ही अच्छा दिन साबित होता है जब वो यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं। उनका कहना है कि हम कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सब बुजुर्ग हैं, लेकिन ये कैरम जो है ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत आसानी से। ठीक है अफशा, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।